بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہاں جی دلشاد صاحب خیریت ہیں؟ الحمدللہ۔ کون؟ طاہر رضا صاحب؟ جی 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 خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر احسان ہے جنہاں میں گنا فون کر دیتے ہیں یار، کام میں دھیان رہے۔ اب تو کام میں نہیں ہو؟ نہیں یار کام میں تو نہیں ہے دلشاد بھائی، آپ تو یہ کہتے تھے کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ فلاں گالی بکیا فلاں گالی بکیا، آپ تو گالیوں میں ریکارڈ توڑ لو یار، اتنی گالی بک رہے تھے اچھا تھا صدیقو کو ہمارے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک ہے، آپ بولو تو میں بولتا ہوں۔ نہیں آپ بولو بولو۔ میں بول رہا ہوں ایک فون کاٹا، 2 فون 100 فون مجھے پڑا ہے، وہاں باہر لاری کھڑی ہے، مال کا میجرمنٹ ناپ ہو ارے رہا تو تھا، میں شدام دلشاد بھائی میں لگوا رہا تھا، آپ کہہ دیتے نا کہ میں کام میں ہوں، اب ہم آپ کو پریشان تھوڑی کرتے ہیں ایسے یار، کئی مرتبہ آپ کو فون لگا لیا، آپ تو بتا دو گے کام میں ہوں میں اس وقت، آپ بات نہیں کر میرے سکتا ہاتھ تو کوئی میں بات نہیں۔ تیل لگا تھا، میں دوسرے سے فون اٹھوا رہا تھا، اگر آپ ہوتے نا تو میں گالی دیتا بھی نہیں تھا۔ اچھا چلیے چھوڑیے، میرے ہاں میں بات کروں گا آپ سے علم غیب کے اوپر، نبی کا علم غیب میں ثابت کروں گا۔ کتنا دیر تک بات کرو گے آپ کو؟ تو میں بولو پہلے ہی بول رہا ہوں، کتنی دیر کرو گے بولو۔ بات سنو طاہر رضا صاحب، میں آپ کو کتنی بار بول چکا ہوں، میں موبائل پہ بات نہیں کرتا اور آپ گروپ میں بات نہیں کرتے، تو بات دیکھو مجھے سنو میں گروپ میں بات نہیں کرتا ہوں، صرف میں آپ سے بات کرتا بھی نہیں، میں نے آپ سے فون اس لیے کیا ہے کہ آپ جو ہے گروپ میں اہل حدیث وہ جو میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کی آپ حمایت میں آئے ہو شہباز جو ہے، اس لیے، اور پھر اس دن آپ نے پکارا، ہاں اس دن آپ نے پکارا کہ تم طاہر رضا قادری سے حمایت پوچھنے گئے ہو گے یا علی خان سے پوچھنے گئے ہو گے یا نور حسن سے، اور علم غیب پر آج آپ اعتراض کر رہے تھے، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کیونکہ میرے نبی کا معاملہ ہے، علم غیب میں ثابت کروں گا۔ میں نے تو میری بات سنیے نا، جی اس دن جب میں نے بولا تھا، ہلو جی 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 بولیے۔ اس دن جو میں بولا تھا اس کی وائس جلدی نہیں آ رہی تھی، تو میں نے بولا اس کے اوپر طاہر رضا قادری علی خان یا نور حسن کس سے وسیلہ لینے گیا ہے، میں نے یہ کہا تھا۔ ٹھیک اب اس بات کو چھوڑو، اب میں جو ہوں علم غیب ثابت کروں گا آپ کو۔ جواب ہم فون پہ بات نہیں کرتے، آپ گروپ میں نہیں کرتے، بات بنے گی کیسے، اس کا جواب دو آپ۔ ارے کر لیں یار تھوڑی دیر بعد، یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے میری اصلاح ہو جائے، اس میں کوئی بات تو ہے نہیں۔ آپ حضرت آپ، ارے دلشاد بھائی سنو، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ذلیل کروں یا رسوا کروں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ کا بھی اگر یہ مقصد ہو کہ آپ مجھے ذلیل کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے بات نہ کریں، ہمارا مقصد ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، عوام کی بھی اصلاح ہو اور ہماری آپ کی بھی اصلاح ہو۔ قسم خدا کی طاہر رضا قادری صاحب، اگر آپ کے سامنے اگر آپ حکم کریں تو میں آؤں تو آپ مجھے مار بھی لو گے اور گالی بھی ارے دو گے۔ نہیں ارے یار آپ ہمارے نہیں ہیں، آپ ہمارے بھائی والی بات ہے، ہاں یہ مطلب یہ کچھ نہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کو ذلیل یا رسوا کرنے کے لیے بات کروں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ہم خالی اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ولیوں کو اور اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی دشمن نہیں۔ اب سنیے جو ہے قادری صاحب، آپ اگر چڑھاؤ کہیں بھی کچھ کرو، یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن جس دن آپ ہمارے نبی، اور ایک مثال دے رہا ہوں، اور کے شان میں گستاخی کرو گے تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ ہماری تو کیوں اس کی حمایت میں آپ اس کی حمایت میں کیوں عائشہ آباد کی؟ وہ ہمارے ولی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، وہ خواجہ غریب نواز کی شان میں وہ گستاخی کر رہا ہے، اور وہ ایسے سوال کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں کہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے وہ، اور آپ اس کے پکش میں بول رہے ہو، آپ اس کی حمایت کر رہے ہو، آپ اس کا دفاع کر رہے ہو۔ یہ بات آپ کی جائز ہے، اس بات سے میں آپ سے سہمت ہوں، آپ صحیح بول رہے ہو۔ ارے بھائی ہم اور آپ بات اگر کرتے ہیں، سنیے، تو ہم اولیاء کرام کی شان میں گستاخی تو نہیں کرتے۔ آپ کا جو ہمارا اختلاف ہے عقائد کا اختلاف ہے، اور وہ تو مطلب اولیاء کرام کی شان میں وہ گستاخی کر رہے ہیں اہل حدیث اس وقت کہ انہوں نے بس ایک ٹاپک پکڑ لیا، مزار، ان کے یاد بس مزار کے علاوہ کچھ نہیں رہا، یا تو مزار پکڑ لیا ہے یا انہوں نے اپنے لڑکیوں کو بٹھانا شروع کر دیا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے کہ وہ لڑکے ان کی طرف راغب ہوں، وہ لڑکوں کو وہ بہکائیں، یہ طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اس دن وہ لکھے ہوئے اپنے واٹس ایپ پہ لکھے ہوئے ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اسے میں نے اتنا چھترول کری ہے اس کی کہ اب اس میں گرم نہیں آ رہا، آج میں نے ریکارڈنگ ڈال دی اس کی یوٹیوب پر، سن لینا آپ۔ کون ہے وہ لکھا ہوا تھا اس پہ اپنا آپ کا نام بتاتا، وہ اپنا امام اعظم ابو حنیفہ، وہ چھترول بنائی ہے میں نے اس کی، تو اس کی نانی یاد آ گئی اسے۔ اس کا نمبر کیا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ بتاتا، اپنا نام بتا نہیں رہا ہوں میں۔
अपना नाम बताता है। जी जी, ये भाई ये तौहीन थोड़ी कर, इतनी बड़ी तौहीन थोड़ी कर रहे हैं हमारे औलिया किराम की, हमारे इमामों की भी तौहीन कर रहे हैं ये लोग। हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं दिलशाद भाई। हम अपने नबी की और अपने औलिया किराम की अजमत के लिए अपनी जान दे देंगे, एक जिस्म का खून का कतरा कतरा बहा देंगे। हमसे जब तक हमसे किताब से बात होगी, किताब से बात करेंगे, और अगर कहीं ऐसा कोई मसला आएगा तो हम उससे भी नहीं हटेंगे अपनी जान देने से। बेशक, सुभान अल्लाह। अब आप सिर्फ, आपसे मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूँ कि इल्म गैब के बारे में आप थोड़ी सी बात करें मुझसे, ज्यादा नहीं, लंबी नहीं करूंगा मैं इल्म गैब आपको बताऊं कि इल्म गैब नबी को अल्लाह ताला ने अता किया है। अच्छा ठीक है, आपका हुक्म मान के मैं आपकी अरे यार, बात को बात ना मान मेरा मकसद, आपका हुक्म मान के मैं सुन लेता हूँ। हाँ हाँ सुनो, हमारा अकीदा जो है, पहले हमारा अकीदा सुन लीजिए आप। हाँ, बरेलवियों का अकीदा जो है, बरेलवियों का अकीदा ये है, जहन में रखना बात को, वो समझ के समझना बात को। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया, अता किया, अता किया। समझ गए नहीं? हाँ 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 हाँ, ये हमारा अकीदा है। अब अगर कोई ये कहता है कि नबी खुद से जानते थे तो वो काफिर है। हाँ जी जी। अब ये बताइए इसमें अकीदे में हमारे क्या आपको इख्तिलाफ है इससे? आप देखो, आपकी बात जब मुकम्मल हो जाए ना, हो गई मेरी, हो गई, बोलिए आप, बोलिए बोलिए। मैंने अपना अकीदा आपके सामने बयान कर दिया। अब आप अपना इस पर मुझे ये बताइए कि मैंने जो अकीदा पेश किया इस पर आपको क्या इश्काल है और क्या इतराज है? हाँ जी जी जी। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको खाली मानता भी नहीं, आपको प्यार भी करता हूँ साहिब रज़ा साहब। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। जर्रा नवाजी, जर्रा नवाजी, बात नहीं करता, जर्रा नवाजी आपकी बात नहीं करता, किसी कीमत से बात नहीं करता। चलिए चलिए चलिए, जर्रा नवाजी आपकी। अच्छा, और आपने जो कहा कि अल्लाह ने जो अता किया, जी, अब हमको एक जवाब दे दीजिए। जी जी, मैं पूछिए। आपकी बात मानूं कि आपके अकाबिर की बात मानूं, इसका जवाब दो, फिर मैं आगे बात करूंगा। बताइए। बोलिए बोलिए। मैं अकाबिर की बात भी मेरे सनाखों से, मैं अकाबिर की मानूंगा, मैं अपने अकाबिर की बात से नहीं जाऊंगा। अगर आप कोई मेरे अकाबिर ने, बिल्कुल मानूंगा। हाँ अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब आप हमको बताएं कि आप अहमद यार खान नईमी साहब जाल हक में लिखते हैं जी, वलगैब मालम यकुम अलैहि दलील वला उतलिया अलैहि मखलूक। जी, समझे? वो गैब हो ही नहीं सकता जिस पर सबील लग गई हो, दलील लग गई हो, वो गैब ही नहीं है। ना अताई है, ना जाती है, कुछ है ही नहीं है। वो गैब में आएगा ही नहीं। अब क्या करूं बताओ आप? कौन सी किताब बताई आपने? जाल हक। सफा नंबर बताइए। मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, मेरे पास कुछ है नहीं तो तुम नहीं बता पाओगे इसे। नहीं आप फिर भी सफा नंबर 61 या 91 92 देख लो, शायद मिल जाए। मेरे पास रखी हुई है, मेरे पास रखी हुई, मैंने पूरी पढ़ी हुई है मेरी। ऐसी कोई बात नहीं उसके अंदर। जो आप एतराज कर रहे हैं वो ये बात नहीं है, जो आप करना चाह रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे उसे। आप जिस दिन जाल हक हो उस दिन बात करना। अब मैं आपको कुरान से साबित करके दिखाता हूँ। हाँ, कुरान से साबित कर दीजिए, बताइए। जी देखिए, कुरान की आयत, सूरत निकालिए आप, सूरह आले इमरान। भाई साहब, मैं अभी काम धंधे से आया हूँ, वैसे आपका फोन आ गया, किसी से बात कर रहा था। अच्छा, सुनिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान, आयत नंबर 179। हाँ, वो आयत नंबर 179, सूरह आले इमरान। पढ़िए। इसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। इसका तर्जुमा है, और अल्लाह की शान ये नहीं कि आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे। समझना बात को? अल्लाह की क्या, अल्लाह की शान नहीं? और अल्लाह की शान ये नहीं कि ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे। आम लोगों हैं, आम लोगों, हाँ आम लोगों, जैसे हम तुम आ गए आम लोगों में, जैसे हम आप आ गए। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। अब आप मुझे दिलशाद भाई सिर्फ ये बता दें, जब ये अल्लाह ताला कह रहा है खुद के अल्लाह ताला चुन लेता है जिसे रसूलों में से जिसे चाहे, तो अभी तक किसी को चुना या नहीं चुना अल्लाह ताला ने? ये जवाब दीजिए आप। अब यार ताहिर रज़ा कादरी साहब इतनी घिसी पिटी बात कर रहे हैं, सामने अल्लाह खुद कह रहा है, आपके बकौल जो आप पढ़ रहे हैं, मुझे तर्जुमा भी नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह चुन लेते हैं। अल्लाह के तमाम नबियों को बताया है बहुत सारी बातें।
हर नबी को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने हर नबी को गैब का इल्म अता किया है और नबी के वसीले से औलिया किराम को भी हासिल है। अरे भाई वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो अब इस बात से इनकार क्यों करते हैं आप? अब यह सुनिए, अल्लाह जब चुन ले ना गलत बात कर रहे कादरी साहब। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। दिया अल्लाह ने चुन लिया, चलो 1 लाख कमोबे 24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया, लेकिन गैब उनके पास था नहीं, चुना गया अल्लाह ने। दिलशाद भाई यही तो तुम्हारी बेवकूफ़ी हो गई। यहाँ मैंने तुमसे पहले ही अपना अकीदा क्या बयान किया? मैंने अकीदा ये बयान किया कि मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता किया। अता यानी अल्लाह ने दिया। अरे मेरे भाई अता जो किया गया वो गैब बनता ही नहीं आपके अहमद यार खान नईमी से। जो अता की सफा बताइए, सफा बताइए, सफा किताब का सफा बताइए, मेरे पास रखी जा रहा 61-62 या 91-92 देख लो आप, मेरे ख्याल से 61-62 मेरे पास है। इसमें बोलिए क्या क्या रिवायत पढ़ो, क्या पढ़ रहे थे आप? झगड़ा अताई का ही है कादरी साहब। इसमें कोई नहीं है भाई, 61-62 में कोई ऐसा नहीं, 61-62 में कोई ऐसा नहीं है, न 63 में है। अब 91-92 में देखो। हाँ जी देख लीजिए 91-92। हाँ सुनो सुनो, हाँ 91-92 आ गया साहब। अब पढ़िए। वलगैबु मालम यकुम अलैहि दलीलु वला उतलिया अलैहि मखलूक। नहीं, इसमें कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है निशाद भाई इसमें। आप इसे सही तरीके से आप ऐसा करें, मेरी बात सुनो। मैं फिर किसी दिन मैं सुनो, अरे मेरा आपका कोई झगड़ा नहीं है, मैं फिर किसी दिन आपको फोन लगाऊंगा, आप इसे किताब को अपने पास रखें, जिस दिन आप फ्री हो नहीं उस दिन मुझे पढ़ के सुनाए कि देखो ये लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ मैं आपको एक हदीस भी सुना देता हूँ, सुनो ये एक हदीस सुना देता हूँ। नहीं वो पहले जो आपने आयत पढ़ा था जी जी जी, उस आयत में पहले तो आप ये बताइए अल्लाह के रसूल को जो इल्म गैब आप मानते हैं, अताई जो मानते हैं, वो लुग़वी मानते हैं, इस्तिलाही मानते हैं। माँ काना व मा यकून से क्या मुराद लेते हैं, क्या समझते हैं? माँ काना व मा यकून से ये मुराद लेते हैं हम कि जो कुछ हो चुका और जो होने वाला है। हाँ हाँ, आप सुनिए हदीस सुनिए। नहीं हदीस में अभी कुरान की बात चल रही है। चलो कुरान की बात नहीं, अभी आपने ही पढ़ा था ना अल्लाह का रसूल ने ऐसा जिसको अल्लाह चुन लिया। हाँ यही कहा था ना आपने? जी 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 जी। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अताई है माताना मा यकून जो गुजर चुका, आपने कहा जो गुजरेगा, ऐसे कहा ना अभी आपने, जो हो चुका, जो हो चुका हाँ, और जो होने वाला है। जी जी हो चुका मेरे तो जो गुजर चुका मैं कह रहा हूँ। तो जो हो चुका वो कब से, जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के उनका खल्क ये बने भी नहीं थे उस वक्त से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से, माँ काना मकून जो हो चुका कहाँ से? नबूवत कब मिली है? नबूवत कब मिली अल्लाह के रसूल को? 40 साल में। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के बीच में आप थे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। दिलशाद भाई हो कहाँ आप? तमाम मखलूक से पहले। अब सुनिए मैं यहाँ सबूत दूंगा आपको। अब मैं आप सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी जुबान पर क्या था ये बताइए आप मुझे। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस पर था जारी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। हाँ ये जारी था जब आप दुनिया में तशरीफ लाए। ना ये नहीं था। क्या था? पहले असदुल्लाह गवाही दी अल्लाह की, सबसे पहले गवाही दी है। ठीक फिर क्या कहा? अब उसके बाद आप बताइए। ये जो मैंने कलमात पढ़े ये कहा, तो जो बच्चा पैदा होता है, जो दुनिया में तशरीफ लाता है, रोता हुआ पैदा होता है, उसे क्या मालूम दुनिया क्या चीज है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहले ही अल्लाह ताला ने बता दिया था कि महबूब तुम्हें मैं दुनिया में नबी बनाकर भेज रहा हूँ और तुम्हारी उम्मत भी होगी। तो नबी उस वक्त पुकार रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अब मैं हदीस सुनाता हूँ आपको। ये हदीस है? हाँ हदीस है।
अब मैं एक हदीस और सुनाता हूँ आपको। कौन सी सुनो हदीस है, हदीस उसका सफा नंबर मुझे नहीं सुनाओ, मैं सब। मुझे अरे दूसरी हदीस सुनाता हूँ, अब दूसरी हदीस सुनाता हूँ, ये भी भेज दूंगा, मैं सब भेज दूंगा, दूसरी हदीस सुन लो। हाँ ये भी मिशकात शरीफ की हदीस है, जिलद दोम, और इसमें बाब है जिक्र यमन और शाम का बाब है ये, और बुखारी में भी है, बुखारी के हवाले से है ये। हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रावी हैं इसके, फरमाते हैं कि एक दिन दरियाए रहमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में है, बारगाह इलाही में हाथ उठाकर दुआ फरमाई जा रही है, यानी सरकार दुआ फरमा रहे हैं, समझे नहीं? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, या अल्लाह हमारे मुल्क शाम में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे लिए हमारे शाम में बरकत दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, ए अल्लाह हमको हमारे यमन में बरकत दे। हाजिरीन में से बाज ने अर्ज किया वफी नजदना, या रसूलुल्लाह नजद के लिए भी दुआ फरमाएं कि हमारी नजद में भी अल्लाह ताला बरकत दे। फिर हुजूर सलाम ने वही दुआ फरमाई जो पहले फरमा रहे थे, मुल्क शाम के लिए, मुल्क यमन के लिए, मगर नजद का नाम ना लिया। उन्होंने फिर तवज्जो दिलाई कि फी नजदना वफी नजदना, हुजूर ये भी दुआ फरमाएं कि नजद में बरकत हो। हुजूर ने अर्ज की, बार बार तवज्जो दिलाने पर हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस अजली महरूम खित्ते को दुआ किस तरह फरमाऊं, वहां तो जलजले और फितने होंगे और वहां शैतान गिरोह पैदा होगा। अब ये बतलाइए कि नज़्र कब ये नजदी पैदा हुआ, कब नबी दुआ फरमा रहे हैं, तो ये कैसे मालूम हो गया नबी को, ये बता दीजिए आप मुझे। बोलो आप, बोलो आप बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, अब मैं कुरान बता रहा हूँ, आप तो हदीस बता रहे हो। कुरान की तो कोई बात नहीं पढ़ी आपने? मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ। अभी आप बोल रहे थे, मैं खामोशी सुन रहा था। पढ़िए आप भी सुनेंगे। आपने पहले कहा कि नबी को अल्लाह ने पैदा किया, बनाया। सुनो, एक मिनट बोल दूं मैं थोड़ा सा? हाँ बोल लीजिए। मैंने आपको 2 हदीसें सुना दी, एक कुरान की आयत सुना दी। आप कोई कुरान की आयत मुझे ऐसी पढ़ के सुना दो जिसमें अल्लाह ताला ने ये कहा हो कि मैंने तुम्हें गैब का इल्म, महबूब या नबी हो, मैंने तुम्हें गैब का इल्म नहीं दिया, या कोई हदीस पढ़ के सुना दो नबी ने ये कहा हो कि मुझे अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता नहीं किया, बस। नहीं, हाँ तो बता रहा हूँ ना मैं। जी बताइए। आपने बात कह दिया, बहुत खामोशी से मैं सुनता हूँ, अगर 5-10 मिनट बोलेंगे तो खामोशी मेरी पूरी बात। सबसे पहले मैं आपको कुरान की आयत बताना वाली, जफ़रल्लाहु मीकातन नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ने तमाम नबियों को, मैं कौन से पारे की आयत है? कौन से पारे की है? क्या बोले? कौन से पारे की आयत पढ़ रहे हो अभी? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं लिखता हूँ। अच्छा, मगर पढ़ रहा हूँ खाली, इसीलिए बात नहीं करना चाहता। जब मैं तैयारी नहीं करूंगा, आप पूछोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं लुंगी और बनियान पहना, चलिए पढ़िए काम करके मैं बैठ गया। चलिए पढ़िए। और मैं सब आयत बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है तो पढ़िए। हाँ, तो तमाम नबियों को इकट्ठा किया, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बखान किया अल्लाह ने, और कहा मैं एक नबी भेजूंगा, और तमाम नबियों को कहा तुम्हें इनकी बड़ाई बयान करने लिए अपने, जब तुमको भेजूंगा नबूवत का ताज भी उड़ाऊंगा मैं सबको, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा महबूब। एक बात। दूसरी बात, काला अकरार तुम कालू अकरना फशदू आना मातुम में शाहिद, तमाम नबियों ने गवाही दिया उस वक्त मेरे नबी को। जब अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, सब खामोश थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गवाही दी, आप मेरे रब हैं। एक बात हो गई। अम्मा आयशा, ये तो कुरान हो गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं बुखारी में कि अल्लाह के रसूल को जो इल्म गैब कहे वो कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक तक कह दिया है, मुशरिक। ये कब की हदीस है अम्मा आयशा की? मैं पेश करूंगा ना हजरत, ये मेरी जिम्मेदारी है जो बता रहा हूँ। आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन एक गुजारिश आपसे है अभी कि ये जो बातें अभी हो रही हमारी आपकी, ये आर्जी हो रही है, इसको यूट्यूब पे मत डालना। अगर डालना है तो आप मुझे पहले बता दो कि तैयारी हो के बात होगी, फिर डालिएगा आप। चलो तैयारी कब करोगे? कब तैयारी होगी आपकी? हजरत ताहिर रजा साहब, मैं सुबह जा रहा हूँ यार पूना से, फिर हो सकता है कि मैं नासिक चले जाऊँ। अब सुनिए, अब मैं आपको बताऊं जो आपने ये कुरान की आयत पढ़ी, ये सूरह आल इमरान की आयत है, आयत नंबर 81 है। हाँ, वो आयत है। ये आपने यहाँ इल्म गैब की कोई बात नहीं हो रही। जो अम्मा आयशा की आपने हदीस पेश की, वो अम्मा आयशा नहीं बताया हूँ मैं, अल्लाह के रसूल की गवाही बताया हूँ मैं। हाँ, सुनो, अब यहाँ जो अम्मा आयशा की आपने हदीस पेश की, ये अम्मा आयशा की अपनी राय है। हदीस वो होती है जो क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, या उसका रावी कोई सहाबी हो। आप निकाह में नहीं थी उस वक्त, निकाह में नहीं थी आप उस वक्त, निकाह में नहीं थी नबी की, जबकि ये आप अपना ख्याल बयान कर रही हैं।
ये आप पढ़ें पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब सुनो। अम्मा आयशा की बात पे आप कौल फेल पे आपको एतमाद नहीं? हजरत इब्न अब्बास की हदीस मौजूद है यहाँ, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अम्मा बिल्कुल आयशा, खोल। अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मा आयशा नहीं होती इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। अरे मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई दिलशाद भाई, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो तो। अरे सुनो तो, जवाब देता रहा हूँ, सुन तो लो। आए हाय, बड़ी अम्मा आयशा। अरे सुन तो लो, पहले सुन तो लो। जिस वक्त ये बात बयान की है अम्मा आयशा ने, उस वक्त आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में नहीं थी। यहाँ हदीस एक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस है, समझे नहीं? अब यहाँ हदीस का कोल उस पर अमल किया जाएगा जो वो फरमाना है कि मुझसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अम्मा आयशा की जो मतलब अपना वो राय पेश करनी, उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, आपने ये कहा था, खर्च कर लिया कि अम्मा, आपको मालूम है कि अम्मा आयशा की शादी नहीं हुई थी? हाँ, बिल्कुल कंफर्म है। आप तो तैयारी करके बैठो, मैं तुम्हें सब हवाले दूंगा। अब जब आप कह रहा हूँ मैं तैयार करके नहीं बैठा हूँ। अब सुनिए, हदीस में एक हदीस और सुनाता हूँ आपको, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल इत्तिसाम बाबुल किताब सुन्ना और तफसीर खादिन में ज़ेर आयत ला तसलू मन अशियाइन तुब्दु लकुम है। इसके ज़ेर आयत इन्होंने एक हदीस बयान की है। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए, बस कयामत का जिक्र फरमाया कि इससे पहले बड़े बड़े वाक़या, जो शख्स जो बात पूछना चाहे पूछ ले, कसम खुदा की जब तक हम इस जगह यानी मिंबर पर हैं, तुम कोई बात हमसे न पूछोगे मगर हम तुमको उसकी खबर देंगे। एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया कि मेरा ठिकाना कहाँ है? फरमाया जहन्नम में। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने खड़े होकर दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? फरमाया हुज़ाफा। फिर फरमाते रहे कि पूछो क्या पूछना चाहते हो? अब ये बताइए कि जहन्नम में कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है? जब आका ये बता रहे हैं दिलशाद भाई, तो क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं दिया अल्लाह ताला ने? मेरे रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये भी बता दिया है कि कौन कौन तुम पे ईमान लाएगा, कौन कौन जहन्नमी है, कौन कौन जन्नती है। नबी सबको जानते हैं, समझे नहीं? क्या बोलूं मैं आपको भाई? हाँ, अब सुनिए दूसरी हदीस और सुनिए, मिशकात से। अब देखो, आप बात सुनो, पूछो तो आप भी सुनिए। पढ़ो। मतलब आप कह दो कि खुद मैं अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूँ। क्या कह दो? खुद में क्या कहा? मैं अल्लाह का रसूल खुद अपने नफे नुकसान के मालिक। बिल्कुल, हमारा ईमान है इस बात पे। क्या कह रहे हैं? मैं खुद यानी खुद अपनी जाति नहीं हूँ, ये तो हम भी कह रहे हैं। हाँ। हम तो खुद कहते हैं कि अल्लाह की अता से है, हम ये कहते हैं खुद हैं, ये तो हम भी कहते हैं। बस यही फैसला हो गया। फैसला तो आपने कर लिया यहाँ, फैसला तो आपने कर लिया, फैसला आपने कर लिया निशाद भाई जी। कादरी साहब जी, आप या तो 10 मिनट आधा घंटा बोलो, मेरी एक आदत है, मैं सुनता हूँ, फिर आप भी सुनो पूरी बात। बीच में मैं नहीं पूछता हूँ, जो हमको नहीं समझना था तो भी मैं नहीं पूछता हूँ, ये मेरी फितरत है साहब। बोलो। यहाँ फैसला कर लिया ना आपने खुद, आपने कहा खुद नहीं, आपने नफे नुकसान का मालिक हूँ खुद, यानी खुद मना कर रहे हैं। हाँ, तो हम कब कहते हैं खुद से जानते हैं नबी? ये तो हमारा भी अकीदा नहीं है। हम तो पहले मैंने आपसे कह दिया कि जो ये अकीदा रखा है तो वो काफिर है, जो ये कहेगा खुद से जानते हैं नबी। मैंने आपको पहले वजाहत कर दी इस बात की। निशाद भाई पहले समझो। लेकिन आप अताई को मानते हो, अताई पे ही झगड़ा है। अच्छा, जो अताई को मानता है उस पर हुक्म क्या लगेगा? अच्छा चलिए छोड़िए। अच्छा छोड़, एक बात बताइए निशाद भाई, क्या नबी के बाद सहाबा इकराम जानते हैं गैब? नबी के बाद सहाबा इकराम को गैब अता किया अल्लाह ताला ने? गैब जानते सहाबी गैब जानते हैं? हाँ, नहीं। ताबीन जानते हैं? नहीं। तबे ताबीन जानते हैं? नहीं। और उलमाए इकराम जानते हैं? अब आप जानते होंगे, हमको नहीं पता। नहीं जानते हैं, ये बताइए आप। नहीं, आपका सवाल कैसे होगा दिलशाद भाई? आप खुद गैब जानते हैं तो इसका क्या जवाब दें? हाँ, आप देवबंदी तो है ना, देवबंदी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारे लिए 4 चीजें हुज्जत होती हैं। सबसे पहले कुरान, फिर अहादीस, उसके बाद में इजमा, फिर कयास, है नहीं? और इसमें यही होता मुनाजरों में कि पहले कुरान पेश किया जाता है, फिर हदीसें, फिर अपने अकाबिरीन की इबारतें या मुहद्दिसीन किराम का कौल या इजमा पेश किया जाता है, या फिर कयास। ये मेरे हाथ में किताब आपके मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की है, इसका नाम है हिकायत औलिया, इसे अरवाए सलासा भी कहते हैं।
समझे ना। अरे भाई मैं अब जब कोई नहीं जानता, गैर कोई, जब नबी नहीं जानते तो आम उम्मती थोड़ी जान लेगा। विशाल भाई सब लेके बैठूंगा, काय को टेंशन ले रहे हो आज? तुम कुछ भी नहीं लेके बैठोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे ये बताओ कि उसको हुक्म क्या लगेगा जो गैर जानता। नहीं कर पाएंगे तो मत फोन लगाओगा साहब, और क्या बोलूं। अच्छा तो आप जो है मेरी बात सुन दिलशाद भाई, मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे इस तरीके से मोहब्बत से कह रहा हूँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ कि आप बात करें, हाँ गुरु में बात करें आप, लेकिन वहाबियों के पक्ष में ना आए। जो मेरे नबी की और मेरे औलिया किराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अगर उसके पक्ष में आप आएंगे तो मैं आपको फोन लगाऊंगा। अब ये सुनते जाएं आप, एक अपने किताबों की एक मतलब हिकायत सुनते जाएं कि जो तुम नबी को तो इल्म गैब नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे काबिरों ने तुम्हारे अपने आलिमों को इल्म गैब माना है। ये देखिए मेरे हाथ में किताब है, इसका सफर नंबर 185। मेरी बात सुन लो, अभी से सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। ये तुम्हारे फतवे से, मैं तुमसे नहीं लगवा रहा, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि इसे डालना मत, ये काफिर हो जाएंगे तुम्हारे फतवे से, क्योंकि अब तुम फतवा ये लगाओगे काफिर हो जाएगा जो इल्म गैब मानेगा, और तुम्हारे जो वो हैं मौलाना तकी उस्मानी, वो भी काफिर हो जाएंगे, क्योंकि वो अताई इल्म गैब मानना है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, कई मुतादिद तुम्हारे मौलवी जो है मानना है, मुतादिद दिखला दूंगा। इसमें ये सफा नंबर इसका 184 और 85 है। इस पे लिखते हैं, ये खान साहब ने फरमाया कि मौलाना ननौतवी फरमाते थे कि शाह अब्दुल रहीम साहब विलायती के एक मुरीद थे जिनका नाम अब्दुल्ला खान था, और कौम के राजपूत थे, और ये हजरत के खास मुरीदों में थे। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता और वो ताबीज लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे कि तेरे घर में लड़की होगी या लड़का, और जो आप बतला देते थे वही होता था। इन्हें कहाँ से गैर मालूम हो गया? छोड़ दो ना उस बात को, क्यों छोड़ दो? तो इन्हें क्या मारोगे, लात मारोगे इन्हें काबिरों को लात मारोगे अपने दिलशाद भाई? अरे जो गलत है, मेरा बाप अगर शराबी है तो मैं शराबी बोल दूंगा, सुन लीजिए। हुक्म लगाओ फिर उन पर, हुक्म लगाओ। नहीं कोई भी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अभी मैं देखा भी नहीं, हुक्म लगा दूं आपके बकौल कैसे हुक्म लगा दूं? आप अगर मैंने आपको ये दिखला दिया ऐसा लिखा हुआ तो आप क्या हुक्म लगाएंगे इन पे, बताइए। लिखा हुआ तो क्या लिखा है, किसने लिखा है, कब की छपी है मकतबा, उसका नजरियात क्या, कब देखेंगे? सुनो, ये लिखने वाले हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी तुम्हारे, और कुतुब खाना नईमिया देवबंद की छपी हुई है। उस दिन एक बात हो रही थी वहाबियों से, तो उसने एक मामूम कोई वली टाइप की, बुजुर्ग टाइप के आदमी थे, उनका हवाला पेश किया, तो देवबंदी और बरेलवियों ने मिलकर उनकी जनाजा निकाल दिया। देखिए ऐसा है मुनाजरे में दिलशाद भाई, अकाबिरीन की इबारतें पेश की जाती हैं, औलिया किराम की कोई भी बात पेश नहीं की जाती। जो औलिया किराम की बात पेश करेगा, ख्वाजा गरीब नवाज की बात पेश करता आदमी, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ इस्लाम फैलाया है, उनसे बाद में तो कितने कितने मुहद्दिस गुजर गए, मुजद्दिद यहाँ गुजर गए, किसी ने कलम उनके खिलाफ नहीं चलाया। तो आज के मुल्ले देवबंदी हों या वहाबी हों, इनकी क्या अहमियत है और क्या जरूरत है जो उनके खिलाफ कलम उठा दें? अरे मुजद्दिद अल-फसानी गुजर गए, मुहद्दिसों का खानदान है नहीं, मुहद्दिसों का खानदान मतलब दिल्ली के अंदर गुजर गया, जिनके हम मतलब जो हमारे लिए हदीस है ना, हिंदुस्तान में उन्होंने हदीस हमें सिखला दिला के, उनका हम पर करोड़ा एहसान है। तो कादरी साहब, आप जब इस तरीके से बात करते हैं ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हम ये दुआ करते हैं अल्लाह उनके सत्ते में, उनके खैर बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, मकबूल। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दीन फैलाए, ये तो ठीक है, लेकिन स्पेशल उनको टारगेट मत करो, और भी बहुत सारे लोग आए। नहीं मैं ख्वाजा गरीब नवाज का नाम, अरे मैं सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं आए, मैं ये कह रहा हूँ ख्वाजा गरीब नवाज को टारगेट बनाया गया ना इस ग्रुप में, उसलिए कह रहा हूँ मैं। तो औलिया किराम को टारगेट बनाना ये बेअहमकी है, बेवकूफ़ी है। अगर आप औलिया किराम को या मैं औलिया किराम को टारगेट बनाने लगूंगा तो हमारे जो अकाबिर गुजर गए उस जद में वो आ जाएंगे, फिर अकाबिरों ने हुक्म क्यों नहीं लगाया उन पे? बात ये है ना। अब दूसरी, अब दिलशाद भाई एक ठंडे दिमाग से एक हवाला और सुन लो, ये मेरे हाथ में किताब है तज़किरतुर रशीद, समझे ना? मत सुनाओ भाई, क्यों? ना वो नहीं सुनाऊंगा मैं, अरे वो नहीं सुनाऊंगा, अरे वो नहीं सुनाऊंगा, अरे मैं लफाजी का आदि नहीं हूँ दिलशाद भाई, लफाजी का आदि नहीं हूँ मैं, वो नहीं सुनाऊंगा जो आप समझ रहे हो। आपकी कोई किताब लेते नहीं बैठा हूँ मैं, अभी लुंगी बनियान में मुंह भी नहीं, अरे मैं वो नहीं सुनाऊंगा जो आप समझ रहे हो, वो नहीं सुनाऊंगा, मैं लफाजी का आदि नहीं हूँ दिलशाद भाई, मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो, मैं वो नहीं सुनाऊंगा जो आप समझ रहे हो, उधर मैं नहीं जाऊंगा। देखिए इसका सफा नंबर है 224, जिल्द नंबर है इसकी 2। इसमें लिखते हैं, मुंशी निसार अली और गौर खान मुलाजिम पलटन रुखसत लेकर बाइरादा बैत लखनऊ से गंगो रवाना होने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर सवारी तक आ खड़ी हुई, इत्तफाक से किसी हाकिम की आमद का तार आया और ऐन वक्त पर उनको उस अफसर के हुक्म से रुकना पड़ा। उस दिन के बाद फारिग होकर गंगो पहुंचे तो हजरत ने साफ इरशाद फरमाया कि तुम दोनों साहिब तो फला रोज आना चाहते थे, यानी गंगोई साहब ने पहले उनसे फरमा दिया कि तुम आज 10 दिन के बाद में आए हो, तुम तो 10 दिन पहले आना चाहते थे, तो मगर रोक दिए गए थे।
اور جب کھانا دسترخوان پہ آیا تو فرمانے لگے کہ آپ کے ساتھ 2 ٹٹو بھی تو ہیں، آخر وہ بھی تو ہمارے مہمان ہیں، اول ان کو گھاس دانا دو پہنچائیے، حالانکہ دونوں کے ٹٹوؤں پر سوار ہو کر آنے کی اطلاع آپ کو کسی نے نہیں دی تھی۔ اب یہ بتائیے، آپ اپنے عالموں کو تو علم غیب مانتے ہیں یار، جہاں نبی کی بات آتی ہے جن کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں یار، وہاں آپ مطلب نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ قرآن خود گواہ ہے، متعدد حدیث اکرام بھری پڑی ہیں، اور آپ نے ابھی جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں خود آپ نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں کہ میں خود سے تو ہم بھی انکار کرتے ہیں، خود سے جو مانتا ہے وہ کافر ہے۔ نہیں آپ بول رہے ہیں زیادہ، میں کہہ رہا ہوں حضرت اتنی بات سنیں، آپ اتنی بات بتائی، حوالہ بھی دیا، میں آپ کو سب سے پہلے مجھے معلوم ہونے والا ہے احمد یار سیدھا بولنے میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور آپ دکھائی نہیں سکتے ایسا۔ آپ بتاؤ کب تیاری کر کے بیٹھو گے؟ مجھ سے تیاری کر کے علم غیب پہ بیٹھو، چلو بات کروں گا میں آپ سے۔ آپ کتاب تیار کر لو، جس دن آپ کہو گے میں اس دن آپ سے بات کروں گا، ٹھیک ہے دلشاد بھائی؟ ہلو ہلو، کیا کر دیا تو نے یہ؟ شاید نہیں ہے، اچھا کاٹ گئے، کاٹ دیے۔